हेलो देयर एवरीबॉडी गाइस, ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंसी के लिए मैंने कैंपेन की थी। कैंपेन नहीं कह सकते इसको, मतलब हमारा गुफ्तगू का एक सेशन था। उसमें आपने बताना था कि अगर हम आपको लेते हैं तो फिर आपको हमें क्यों लेना चाहिए, आप हमें कैसे हेल्प करोगे, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो आगे जाके आप वीडियो देखोगे, वो 4 मिनट का वीडियो है, वो नेथन ने फ़िल्म किया था। और उसको देखने के बाद मैं कह रही हूँ कि यार देखो मैं कितना अटक रही हूँ, मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पॉजेज़ बहुत से ले रही हूँ, मैं अटक रही हूँ, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार कम से कम देख तो लिया कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। I am running for president of programming and outreach, and I am interested uh, in the leadership position, which I have always cherished and enjoyed back in my hometown. So, if I am selected, I would be interested in bridging up the gaps between UNT and other organizations and other institutes, and I would also be keenly interested in making a good quality level connection between the different campuses of UNT, Frisco, Discovery Park, and UNT main campus. I go to the Discovery Park a lot, and the students would be like, "Oh, your university is so beautiful," and I've always thought like the main campus is beautiful. So that would be a great opportunity for me to organize the events all around the campuses so that the students have more opportunity to interact with different students and to know what is happening across the campuses. I would be interested in planning events, and I would be interested in managing different programs. I would also be interested in calendar coordination, meeting the deadlines, planning everything on time and properly. Being the vice president of programming and outreach, time would be one of my top priorities. Team collaboration, being an international student, I am aware of the importance of teamwork and team collaboration. Every person brings his or her unique experience and the knowledge to the table. So that's something I I enjoy, and I would love to do that a lot if I am selected. Through team collaboration, I would target on bringing up the innovative and creative insights of the students who come from different ethnic, linguistic, and geographical backgrounds. As I said earlier, every person brings something unique to the table. So I'm not saying that I will be filling the gaps, because people who already are working in those positions, they are doing a great job. I would contribute what I have. And I believe I have my unique skills because I come from an underdeveloped region of Pakistan, and I had the opportunity to deal with a diverse community. We had people, students from all kind of ethnicity, linguistic background, religious background. That was so much fun and engaging to just organize an ethnic event or a religious event. So I would carry that experience and knowledge in UNT. That's why I believe that I can contribute. I will be involved in outreach activities, because that is going to be one of the key responsibilities of this job. Public relations, I will work on that. Membership growth, I would initiate volunteerism on campus, because that's
where we can give an opportunity, we can give a platform to everybody to come and contribute. And it gives a great sense of community engagement. Hello there guys. तो हम जो है हमारी एक वो हो गई स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल में जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं लड़ रही हूँ और विच मीन्स आई एम रनिंग फॉर ऑफिस और एक्सपीरियंस यार इतना मज़े का था कि बहुत सारी चीज़ें समझी मैंने, सीखी मैंने कि यार कैसे होता है, कैसे सवाल। अब पहले मैं कह रही थी यार नहीं जाते, फिर मैंने कहा यार जाने में क्या होगा, मतलब क्या होगा, ज़ोर ये होगा कि मेरे को जवाब देना नहीं आएंगे। तो आप लोगों के साथ लकीली नेथन आ गया और नेथन ने जो एक वीडियो बनाई और मुझे नहीं तो पता, मैं तो देख भी नहीं रही थी। फिर नेथन ने मुझे कहा मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा दैट्स ग्रेट। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में ना अपलोड कर दूंगी। और अभी जो है जी हम बाहर आ गए हैं, लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है, ये सॉकेट को यहाँ से ये वो है सॉकेट, ये है। तो सॉकेट को उठाना है और अपने लैपटॉप को लगाना है चार्ज पे। दिन बड़ा प्यारा है और मैं बाहर बैठ के अपना स्टडी करूँगी। लुक हाउ ब्यूटीफुल द डे इज़। और बिल्कुल ना गर्मी है ना ठंड है, बड़ा प्यारा मौसम है। अब एक हाथ से मेरा लैपटॉप तो निकलने को रहा, तो आई नीड माई अनदर हैंड। और जब तक आप मेरी वीडियो देखें, मेरी स्पीच देखें गाइस। और राइट गाइस, आप लोगों ने देख लिया मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जब उस वक्त बोल रही थी मैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि यार अच्छा जा रहा है। अब जब सुना मैंने कहा मैं क्यों इतना अटक रही हूँ, मैं क्यों इतना आस्ता जा रही हूँ। बट दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो ऐसा तो होगा। जबकि बात करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जब वो एकेडमिक की बात आती है ना तो अटक जाती हूँ। इसीलिए गाइस आजकल मैं हूँ कि नोट्स बना के रखो और अपने नोट्स पे एक फ्लुएंसी के साथ बोलते जाओ। आने वाले दिनों में ना मेरा ये एम होगा कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ अपने नोट्स को और रवानी के साथ बात करती जाऊँ। अब देखो अच्छा होता है ना कि आप अगर कोई चीज़ अपनी आप फिल्म कर लेते हो और उसको आप बाद में देखते हो, तो आपको फिर पता चलता है कि आपने कितना अच्छा किया और आपने कितना बुरा किया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी के बाद एक इवेंट हो रहा था, ये देखें डांस लोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्पीकर्स लगा देते हैं और बहुत लाउड म्यूज़िक आ रहा है। तो मैंने कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कहा यार मैं जाके देखूँ क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं पता ये क्या दिन था, लेकिन ये बच्चे सारे अपना डांस कर रहे थे, इन्होंने अपने म्यूज़िक गाने लगाए हुए थे, तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। और मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखा है, क्योंकि ज़्यादा म्यूज़िक अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर कॉपीराइट मेरे ऊपर आता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी सुन लें।